So we'll be starting with the fourth chapter. The name of the chapter is Construction of Triangles. You would have done this construction in your standard 8 as well. 8th standard में certain values of the sides and the angles were given to you, and using those values you drew the triangle. ठीक है? But now some insufficient value is given to you. Okay? Insufficient value भी नहीं बोल सकते. Certain values are given to you, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के क्या करने का, कंस्ट्रक्शन करना है. ठीक है? Now if you look at the first sum, the name of the triangle given to you is triangle PQR. उसमें से base दिया है. What is the base that is given to you? QR. So what you need to do? You need to draw a triangle. I am drawing the rough figure. Okay? देखो, this is my rough figure. The name of the triangle is triangle P, Q and R, where the base QR is given to you as 4.2 centimeter. Angle Q is given to you as 40 degrees. And then other than these two information, you have given an additional information. ये जो भी क्वेश्चन देखोगे उधर तुमको एक साइड का वैल्यू दिया है और बाकी दो साइड का एडिशन दिया है. They have given you the addition of the remaining two sides. If you look at the other sums or if you look at the second exercise, शायद इसी में तुम लोग आगे देखेंगे, सॉरी सेकेंड एक्सरसाइज में तुमको subtraction of two sides दिया रहेगा. ये पूरे एक्सरसाइज में you have given addition of two sides. In the further exercises you are given subtraction of two sides. तो एक साइड का वैल्यू दिया और बाकी दो साइड का क्या दिया, एडिशन दिया. तो इधर क्या दिया है, PQ plus QR दिया है. कितना दिया है? PQ plus QR is given to you as how much? It is given to you as 8.5 centimeter. 8.5 centimeter value is given to you. हाँ, PQ plus PR, not QR. PQ plus PR का value is given to you as 8.5 centimeter. So now what you need to do is you need to take some construction of your own. What you need to do, see, whenever you construct this, whenever you draw the rough figure, सबसे पहले रफ फिगर ऐसे ही बनाने का. जो ट्रायंगल पूछा है वो ट्रायंगल बना लेने का, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन करने का. जैसा मैं स्टेप्स कर रहा हूं वैसे ही तुमको करना है. ठीक है? अभी कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो, यू नीड टू एक्सटेंड PQ टू अ पॉइंट S such that PS is equals to PR. समझा क्या किया? क्या किया मैंने? PQ को मैंने एक्सटेंड किया टू अ पॉइंट S. इस तरह मैंने एक्सटेंड किया ताकि PS और PR क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. अब मुझे बताओ, अगर PS और PR इक्वल है तो मैं PR की जगह में PS लिख सकता है ना? तो मैं क्या लिखेगा, PQ प्लस PS इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर. व्हाट इज PQ प्लस PS? हाँ, PQ plus PS is QS. That means QS is equal to how much? 8.5 सेंटीमीटर. तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो QS है ये 8.5 सेंटीमीटर का है. फिर इसको ज्वाइन कर दो. समझा? Now this is my rough figure. समझा रफ फिगर कैसे ड्रॉ करने का? समझा क्या करने का? PQ को मैंने एक्सटेंड किया टू अ पॉइंट S ताकि PS और PR इक्वल रहे. फिर मैंने ये सब्स्टिट्यूट करके QS का भी वैल्यू निकाला. समझा? अब कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है. कंस्ट्रक्शन कैसा ड्रॉ करने का देखो. सबसे पहला तुम बेस ड्रॉ करोगे QR. सबसे पहला क्या ड्रॉ करना है? तो पहला मैं QR ड्रॉ करूंगा और फिर उधर मेंशन करूंगा इट्स 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है? फर्स्ट यू विल ड्रॉ एंड देन मेंशन दैट इट इज 4.2 सेंटीमीटर का. देन यू विल कीप योर प्रोट्रैक्टर हियर. Getting? इस पॉइंट Q पे you will keep your protractor and you will draw an angle of 40 degree. You got the second step? ठीक है? Now the third step is from point Q you will mark an arc S, okay, at a distance of 8.5 centimeter and then you will join S and R. इतना समझा क्या किया? समझा? अब मुझे लेकिन ये ट्रायंगल तो नहीं पूछा है ना. Which ट्रायंगल उन्होंने पूछा है? PQR. तो मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए? P. पॉइंट P मुझे प्लॉट करना है. अब मैं पॉइंट P कैसा प्लॉट करेगा देखो. यू नो दैट पॉइंट P is at equal distance from point S and R. Point P
is at equal distance from point S and R. That means point P lies on the perpendicular bisector of SR. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम हमने देखा था, क्या दिया था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम में? एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स. दिस इज व्हाट वी लर्नड, बराबर ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होता है वो पॉइंट एंड पॉइंट से कैसा होता है? तो अभी यहां पे P S और R से इक्वल डिस्टेंस पे, तो P किसके ऊपर लाई करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? SR के. तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि P किसके ऊपर लाई कर रहा है. P इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SR. P किसके ऊपर लाई कर रहा है? SR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इसीलिए मैं क्या करेगा, SR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा. SR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा ड्रॉ करेगा? R से मोर देन हाफ आई विल टेक, I'll mark an arc above and below. From here I'll take more than half. Sorry, जो ये लिया वही इधर रख के I'll mark arc above and below. अभी at times ये arc जो है बाहर भी आ सकता है, तो तुम बोलने का नहीं तुम्हारा arc अंदर आया, मेरा arc बाहर आया. तुम जैसा लो रहे हो वैसा आएगा, ठीक है? और फिर arc बनाने के बाद क्या करने का? You will join this, and this line it intersects the circle at a point, and this point will be point P. So P lies on the perpendicular bisector of SR. तो यहाँ पे भी perpendicular bisector का साइन बनाने का, ठीक है? नहीं तो मार्क्स चला जाएगा. फिर P को और R को ज्वाइन किया तो तुमको कौन सा ट्राइंगल मिल गया? ट्राइंगल PQR. समझ में आया? समझा कैसा किया? बोलो क्या किया? सबसे पहले QR ड्रॉ किया, फिर 40 डिग्री ड्रॉ, यहां से एक मार्क किया, S और R को ज्वाइन. फिर चाहिए था मेरे को पॉइंट P. पॉइंट P किसके ऊपर लाई करता है? किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? कैसा मालूम पड़ा? उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है. समझा? फिर उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. कैसा ड्रॉ किया? R से मोर देन हाफ लिया, ऊपर एक आर्क, नीचे आर्क, फिर S से आर्क. किधर से आर्क बनाने का? R से बनाने का और S. समझा? और फिर वो जिधर मीट करेगा दैट विल बी पॉइंट P. समझा? अब सेम ये फर्स्ट सम मैंने सीखा है ना, तुमको ऐसे ही सेकेंड सम करना है, थर्ड सम करना है. चलो करो.